Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Imran Faq. Today, the topic of my presentation is forensic paint and coating analysis, info for failure or proficiencies. First is introduction. Paints and coatings are complex multi-component systems consisting of pigments, binders, solvents, and additives applied as protective or decorative layers on various substrates. Due to their widespread use in vehicles, buildings, industrial equipment, and consumer goods, paint residues often serve as trace evidence in forensic investigations. Even minute paint chips or smears can provide critical information for criminal cases such as hit and run accidents, vandalism, or industrial disputes. Forensic paint analysis focuses on two major objectives. First is characterization of paint composition and layer structure. Determining the sequence, thickness, and chemical makeup of layers allow for differentiation between samples and can help associate a questioned sample with a known source. The next is identification of binders and additives. Organic and inorganic components such as acrylic or polyurethane resins, UV stabilizers, and metallic pigments provide chemical fingerprints that aid in forensic determination. The next background. Paints and coatings are complex multi-component systems composed of pigments, binders, solvents, and additives, widely used in vehicles, buildings, industrial equipment, and consumer goods. Paint residues often serve as trace evidence in forensic investigations such as hit and run cases, vandalism, or industrial disputes. Next is objectives of forensic paint analysis. Characterization of paint composition and layer structure. Determines sequence, thickness, and chemical makeup of layers. Helps differentiate between questioned and known samples. Identification of binders and additives. Identifies organic and inorganic compounds like acrylic or polyurethane resins, UV stabilizers, and metallic pigments. Provides chemical fingerprints for forensic determination. Analytical techniques. Optical microscopy reveals layer stratigraphy, color, and morphological features. Scanning electron microscopy provides high-resolution images and elemental analysis of pigments. FTIR microscopy non-destructive identification of organic binders and additives. Pyrolysis GCMS analyzes polymers and additives at the molecular level by thermal decomposition. Recent advances Chemometric and multivariate statistical approach (PCA-LDA) enhance differentiate between paint samples. International standards such as ASTM E2808 and SVG M80 guidelines ensures consistent evidence collection and analysis. The next is significances provides a comprehensive chemical and physical profile of paint samples, enables linking evidence to source, evaluating manufacturing origins, and investigating coating failures, essential tool for modern forensic practice in both criminal and civil investigations. This next is diagram. इस डायग्राम में हम ग्राफ ड्रा करते हैं एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए कि किस नंबर पे किस रेंज में कौन सी पीक शो हो रही है और कैसे शो हो रही है। सबसे पहले हमने वेव नंबर इसका जो यूनिट है वो पर सेंटीमीटर है और अब्जॉर्बेंस लेनी है। वर्टिकल अब्जॉर्बेंस और हॉरिजॉन्टल हमने वेव नंबर लिया और हमने चार ग्राफ शो कर लिए जिनका जो लेयर्स है वो सेम है 50 माइक्रोमीटर ये शो हो रहा होगा 50 माइक्रोमीटर तीनों का। फर्स्ट लेयर में हम देखते हैं क्लियर कोट 29 माइक्रोमीटर। जो हम कंपाउंड है वो बेसिकली हमने जो लेना है वो सेम ही लेना है एक्रिलिक मिलामाइन पॉलीयूरिथेन स्टीराइन। इसकी जो फर्स्ट पीक है हमें नॉर्मल थोड़ी पीक नजर आ रही है वो 3200 और 2800 के मिड में हमें पीक शो हो रही है और दूसरी पीक हमें जो थोड़ी सी शो हो रही है जो एज कंपेयर फर्स्ट बेटर है वो हमारी 1600 पे ऑलमोस्ट हमें शो हो रही है 1600 पे। बाकी 1200 800 3600 पे
कोई पिक शो नहीं हो रही है। लेकिन जब हम सेकंड लेयर पे जाते हैं, बेस कोट, कलर कोट, वो हमने पहले 29 माइक्रोमीटर लिया था, लेकिन अब हमारे पास 16 माइक्रोमीटर है। हमने कंपाउंड सेम वही यूज करना है, एक्रिलिक मेलामाइन स्टीराइन। इसकी हमारी सबसे पहले जो लेयर है वो बिल्कुल ही माइनर है, कोई नहीं शो हो रही, लेकिन जो फर्स्ट ये वाली पीक है ना, ये हमारी 2800 के बिल्कुल करीब करीब पे ना ये शो हो रही है। बाकी जो इसकी सही पीक है ना वो 1600 पे, सेम 1600 पे शो हो रही है। और जब लेयर 3 की बात करें, लेयर 3 पे हमने जो सरफेसर है ना वो हमें 33 माइक्रोमीटर लेना है, और इसमें हमने जो कंपाउंड यूज करने हैं वो आइसोफथैलिक एसिड बेस्ड अल्काइड मेलामाइन है। और सेम इसकी भी जो हमारे पास जो मिनिमम जो थोड़ी सी पीक शो ये वाली हो रही है वो 2800 के करीब करीब ही है, लेकिन जो हमारे पास सही पीक है वो 1600 पे हमें शो हो रही है। और देन लास्ट जो फोर्थ लेयर है, इसमें हमने ई कोट प्राइमर यूज किया, वो 31 माइक्रोमीटर। इस पे एपॉक्सी पॉलीयूरिथेन हमने लिया है, और इसकी सेम हमारे पास जो पीक माइनर सी पीक है ना वो 3200 पे भी ये थोड़ी सी माइनर, लेकिन इतनी सही हमें शो नहीं हुई है। लेकिन ये वाली जो पीक है ये 2800 से थोड़ी सी पहले हमें ये नॉर्मल पीक शो हुई है। उसके बाद जो हमारे पास बाकी ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर में जो हमने कंपाउंड यूज किए हैं और जो हमने केमिकल्स यूज किए हैं, उनकी लेयर हमारे पास जो पीक है वो ऑलमोस्ट 1600 के करीब करीब सबकी शो रही थी। लेकिन ये जो है ना हमने फोर्थ लेयर में ई कोट प्राइमर को यूज किया और इपॉक्सी पॉलीयूरिथेन हमने वो कंपाउंड लिया, लेकिन इसकी पीक हमें प्रॉपर 1600 पे भी शो नहीं हुई। 1600 से थोड़ा सा आगे जाए तो ये हमें नॉर्मल पीक शो हुई है, लेकिन उसके बाद 1200 पे फिर हमें नॉर्मल पीक शो हुई है। इस डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि हमने 4 लेयर्स ली और उसमें हमने डिफरेंट केमिकल्स का यूज किया। जो कंपाउंड्स थे, डिफरेंट कंपाउंड्स थे और उनमें डिफरेंट केमिकल्स यूज किया, और उनकी परसेंटेज वो भी डिफरेंट थी। पहली में क्लीन कोट था, दूसरे में बेस कोट, कलर कोट, थर्ड में सरफेसर था, और लास्ट ई कोट प्राइमर था। इस सब इनकी रेंजेस भी डिफरेंट थी। 29 माइक्रोमीटर था, 16 माइक्रोमीटर, 33 माइक्रोमीटर एंड 31 माइक्रोमीटर्स था। और इसमें हमने एक्रिलिक मेलामाइन पॉलीयूरिथीन स्टीराइन हमने यूज किया कंपाउंड। इसमें एक्रिलिक मेलामाइन स्टीराइन यूज किया, आइसोफथैलिक एसिड बेस्ड अल्काइड मेलामाइन एंड लास्ट इपॉक्सी यूरिथेन हमने पॉलीयूरिथेन यूज किया। इससे हमें ये पता चला कि 2800 पे हमें फर्स्ट जो माइनर सी जो पीक्स है ना वो चारों लेयर्स के हमें माइनर सी पीक्स नजर आई, लेकिन जो इसकी सही वाली पीक है वो हमें 1600 पे। लेकिन तीन लेयर्स की, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 एक्रिलिक मेलामाइन पॉलीयूरिथीन स्टीराइन की, एक्रिलिक मेलामाइन स्टीराइन एंड आइसोफथैलिक एसिड बेस्ड अल्काइल मेलामाइन की जो हमें पीक है वो तो हमें 1600 पे शो हो गई। लेकिन जो है ना एपॉक्सी पॉलीयूरिथीन, इसकी हमें 1600 पे यूज ने पीक शो नहीं हुई। ये हमें एज कंपेयर टू 1600 से थोड़ा आगे और 1200 से थोड़ा पहले, इन दो 16 और 1200 के मिड में हमें पीक्स दो तरह शो हुई है, लेकिन एज क्लियर उतनी भी क्लियर शो नहीं हुई जो कि पहले 3 लेयर्स में हमें पीक शो हुई है। इस डायग्राम से हम ये है कि हमने अब्जॉर्बेंस जो हमने केमिकल्स हैं वो भी डिफरेंट, कंपाउंड भी डिफरेंट यूज किया। अब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के दरमियान हमने ग्राफ ड्रा किया, तो हमारे पास 3 लेयर्स की पीक सेम शो हुई, लेकिन जो फोर्थ लेयर है ना इस पे हमने इकोर प्राइमर केमिकल यूज किया था, एपॉक्सी पॉलीयूरिथीन शो हुआ, लेकिन इसकी पीक जो हमें 1600 पे नहीं बल्कि 16 और 1200 पे पीक शो हुई है। नेक्स्ट ये इसी डायग्राम में यही अब्जॉर्बेंस और वेव नंबर के दरमियान और डिफरेंस शो करवाई हुई हैं। और लेयर्स, इसमें हमने लेयर 1 में क्लियर कोट को 39% लिया है, लेयर 2 में पॉलीयूरिथीन को लिया 18 माइक्रोमीटर थिक है, और लेयर 3 में हमने पॉलीयूरिथीन लिया है 200 माइक्रोमीटर। और इन सब की शो जो लेयर्स हैं वो हमें 1600 पे शो नहीं हुई हैं, ये 16 और 1200 के शो के दरमियान की रेंज में हमें शो हुई है। नेक्स्ट इसमें हमने देखा है फोरेंसिक पेंट एंड पुटिंग एनालिसिस। इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एम क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हम इसको करते क्यों हैं। Primary objective of this practical is to utilize
spectroscopic and chromatographic techniques to characterize paint layers and binders. This analysis is crucial for both forensic investigations, hit and run, industrial sabotage, and industrial quality control, enabling identification of paint composition, layer structure, and potential prevention. बेसिकली इसका एम ये है कि हर पेंट में डिफरेंट टाइप्स यूज होते हैं हम इसकी कैरेक्टराइजेशन इसलिए करते हैं कि हमें पेंट की कंपोजिशन का भी पता चल जाए, इसकी लेयर स्ट्रक्चर का भी पता चल जाए और इसके पोटेंशियल का भी पता चल जाए। और ये हम जो इसका ऑब्जेक्टिव हम किस प्रैक्टिकल से यूटिलाइज करते हैं, माइक्रोस्पेक्ट्रोस्कोपिक से एंड क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक से। नेक्स्ट टेक्निक्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ पेंट क्रॉस सेक्शंस टू डिटरमाइन लेयर थिकनेस, सीक्वेंस एंड कलर स्ट्रेटिग्राफी helps to identify surface contamination, weathering और मैकेनिकल damage। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से हमें इस बात का पता चलता है कि लेयर में कितनी थिकनेस है, जो हम पेंट की लेयर यूज करेंगे कितनी थिक है, इसका सीक्वेंस क्या है और कलर स्ट्रेटिग्राफी इसका कलर क्या है। विजुअल इंस्पेक्शन हम पेंट क्रॉस सेक्शंस की डिटरमाइन करते हैं और दूसरे में ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए सरफेस कॉन्टेमिनेशंस, सरफेस पे कौन सा कंटेमिनेंट है, वेदरिंग मौसम से इसको क्या इफेक्ट होगा, अगर आया कि बारिश हो या एसिड रेन का फॉल हो तो पेंट पे क्या इफेक्ट होता है, और मैकेनिकल डैमेज और मैकेनिकल डैमेज क्या है। दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एफएम, high resolution imaging to study morphology and microstructure of paint layers coupled with energy dispersed X-ray spectroscopy EDS provide elemental composition useful for inorganic pigments। बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इसलिए इसको हाई रेजोल्यूशन के लिए पेंट में इसलिए यूज करते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, इसका माइक्रो स्ट्रक्चर पेंट लेयर से पेंट लेयर्स में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है इसकी मॉर्फोलॉजी बेसिकली उसको देखने स्टडी करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। और दूसरा कपल विद एनर्जी डिस्पर्सिव एक्स-रे स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड्स एलिमेंटल कंपोजिशन को देखते हैं, यूजफुल फॉर जो कि इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स के लिए यूजफुल होता है। पेंट के अंदर हम इसके माइनर स्ट्रक्चर कलर मॉर्फोलॉजी देखने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। दूसरा फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड माइक्रोस्कोपी, बेसिकली स्टैंड फॉर एफटीआईआर। एफटीआईआर में हम देखते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक टू डिटरमाइन ऑर्गेनिक बाइंडर कंपोजिशन। हम एसएसएम में स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बेसिकली देखते हैं इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स की कंपोजिशन, एलिमेंटल कंपोजिशन में ये यूजफुल होता है, आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी हेल्प करता है। और दूसरा एफटीआईआर जो है ये हमें ऑर्गेनिक बाइंडर कंपोजिशन में डिटरमाइन करने के लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक के लिए यूज होता है। और दूसरा ये डिफेक्ट्स फंक्शनल ग्रुप्स, ईस्टर कार्बोनाइल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीमर रेजोनेंस और एडिटिव्स। और बेसिकली एफटीआर में हम इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि पेंट में हमने कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज किया है। हमने ईस्टर्स देखा है, कार्बोनाइल, कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर्स, रेजिन्स। हमने बेसिकली कंपाउंड के साथ जो सा फंक्शन ग्रुप यूज किया है इसकी डिटेक्शन भी हम एफटीआईआर से करते हैं पेंट लेयर्स को देखने के लिए। और नेक्स्ट पायरोलाइसिस गैस क्रोमैटोग्राफी में स्पेक्ट्रोस्कोपी, thermal degradation of polymers to analyze nanomeric fragments, confirms binder type and additives at molecular level, useful when an FTIR spectra are overlapping or ambiguous। Next material हम कौन कौन सा यूज करते हैं, पेंट सैंपल्स कलेक्ट फ्रॉम व्हीकल्स, वॉल और इंडस्ट्रियल सरफेसेस। हम सबसे पहले पेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं डिफरेंट जगहों से, व्हीकल से ले लिया, वॉल्स से ले लिया, इंडस्ट्रियल सरफेसेस से कलेक्ट किया। नेक्स्ट माउंटिंग मीडिया, इपॉक्सी रेजिन्स और पॉलीएस्टर रेजिन्स देखते हैं। फिर ग्लास लाइट्स एंड कवर स्लिप्स देखते हैं इसकी। फिर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पेंट्स फॉर कंपैरिजन के लिए देखते हैं। फिर लास्ट पे सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग के जो इस पे कंटेमिनेशन मौजूद है, जो हमने सैंपल लिए इसमें जो कंटेमिनेशन है पहले उनकी माउंटिंग मीडिया देखते हैं, फिर ग्लास स्लाइड्स एंड कवर स्लिप्स देखते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंसेस पेंट्स फॉर कंपैरिजन के लिए देखते हैं, उसके कंपैरिजन के लिए कोई स्टैंडर्ड रेफरेंस ढूंढते हैं। देन लास्ट फॉर सॉल्वेंट फॉर क्लीनिंग के पेंट के साथ जो सॉल्वेंट है उसकी क्लीनिंग कैसे करते हैं, बेसिकली हम केमिकल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एसीटोन, इथानॉल, उसके साथ जो भी कंटामिनेंट है उनको रिमूव करने के लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं सॉल्वेंट को क्लीनिंग करने के लिए। देन अपरेटस, हम इस केमिकल में कौन कौन सा अपरेटस यूज करते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप विद ब्राइट फील्ड एंड पोलराइज्ड लाइट कैपेबिलिटी,
लास्ट फर्स्ट भी पहले ऑप्टिकल भी मैंने आपको बताया कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हम इसीलिए यूज करते हैं कि जो हम पोलराइज्ड लाइट कैपेबिलिटीज में प्रेजेंट हो और हम देख सकें कि इसकी मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्ट्रक्चर क्या है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से। और दूसरा ऑप्टिकल जो माइक्रोस्कोप है वो हमारे पास पोलराइज्ड लाइट कैपेबिलिटी रखता हो। दूसरा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विद ईडीएस डिटेक्टर। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हाई रेजोल्यूशन चेक करने के लिए माइनर से माइनर कंटेमिनेंट, माइनर से माइनर पेंट लेयर का कलर टेक्सचर चेक करने के लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। एफटीआई माइक्रोस्कोप से बेसिकली हम ऑर्गेनिक बाइंडर्स में यूज करते हैं और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस हमें इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स में यूज करते हैं। पायरोलाइसिस यूनिट कपल्ड विद गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोग्राफी पीजीसीएमएस का यूज करते हैं और जिसमें हम कंफर्म बाइंडर एंड एडिटिव्स एट मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं और यूजफुल है एफटीआईआर के लिए स्पेक्ट्रा ओवरलैपिंग के लिए। नेक्स्ट माइक्रोटोम फॉर क्रॉस सेक्शनिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोटेक्टिव लेबोरेटरी इक्विपमेंट ग्लव्स लैब कोट गूगल्स। हम बेसिकली ऑपरेटर्स लैब में जाने के लिए हम लैब सेफ्टी रूल्स का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं जिसमें हमें अपनी प्रोटेक्शन के लिए ग्लव्स यूज करने के लिए लैब कोट यूज करने के लिए शूज प्रॉपर अपने पाँव को भी कवर किया हो तो ये हम लैब सेफ्टी रूल्स में यूज करते हैं जब हम लैब में जाके कोई वर्क करते हैं। नेक्स्ट प्रोसीजर, इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हम सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। सैंपल की प्रिपरेशन कैसे करते हैं? कलेक्ट पेंट सैंपल यूजिंग अ क्लीन स्क्रैपल और स्वैब। हम सैंपल को कलेक्ट करते हैं किसी क्लीन स्क्रैपल और स्वैब से। फिर नेक्स्ट एम्बेडेड सैंपल्स इन इपॉक्सी रेजिन टू प्रिजर्व लेयर इंटेग्रिटी। हम उसी सैंपल को इपॉक्सी रेजिन में एम्बेडेड कर देते हैं उसकी प्रिजर्व लेयर इंटेग्रिटी के लिए। फिर हम यूज माइक्रोटोम टू प्रिपेयर थिन क्रॉस सेक्शंस नियरली 10 to 50 micrometer. Polish cross sections to achieve a flat surface for microscopic analysis. माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए पॉलिश क्रॉस सेक्शन अचीव हम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी एग्जामाइन क्रॉस सेक्शन अंडर ब्राइट फील्ड एंड पोलराइज्ड लाइट। वही बात अगेन कि हम इसको ब्राइट व फील्ड एंड पोलराइज्ड लाइट के लिए एग्जामाइन करते हैं। आइडेंटिफाई लेयर स्टेटग्राफी प्राइमर बेस कोट इंटरमीडिएट लेयर्स टॉप कोट। बेसिकली जो मैंने ऊपर डायग्राम में एक्सप्लेन किया है फर्स्ट सेकंड लेयर में जो हम आइडेंटिफाई करते हैं उसका प्राइमर केमिकल जो बेस कोट उसमें हमने प्राइमर भी यूज किया था बेस कोट भी इंटरमीडिएट लेयर्स को भी यूज किया था। तो ये हम बेसिकली जो काम है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी से देखते हैं। द नेक्स्ट इज रिकॉर्ड थिकनेस कलर एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ ईच लेयर। हम इसमें ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में बेसिकली हम इसमें लेयर की थिकनेस पेंट की थिकनेस को देखते हैं इसका कलर देखते हैं इसकी यूनिफॉर्मिटी ऑफ ईच लेयर। हर लेयर में इसकी यूनिफॉर्मिटी मतलब इसकी एक रेगुलेट देख लें कि इतना थिकनेस है इसका ये कलर है और इसमें मतलब इसकी लेयर में ये वाला माइक्रोस्ट्रक्चर लेवल हमें माइक्रोस्ट्रक्चर जो है ना वो शो हो रहा है ये देखते हैं ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी में। सेम एनालिसिस में माउंट क्रॉस सेक्शन और सेम स्टब एंड कोट विद कंडक्टिव लेयर इफ नेसेसरी। Capture micrographs at varying magnifications 10x to 10,000x पे देखते हैं और परफॉर्म EDS टू डिटरमाइन एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स एंड फिलर्स। बेसिकली हम सेम में जो उसके माइनर स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं और जी हमें रेजोल्यूशन मैग्निफिकेशन जो 10x to 10,000x देता है और ये परफॉर्म करता है डिटरमाइन करता है एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ पिगमेंट्स एंड फाइबर्स के लिए। FTIR माइक्रोस्कोपी place cross section under FTIR microscopes, collect spectra of each layer individually, compare spectra with reference libraries to identify binder resins and additives. बेसिकली हम एफटीआर में जो हमारे पास हमने जो सैंपल है उसको प्लेस करते हैं अंडर एफटीआर माइक्रोस्कोप में। फिर कलेक्ट स्पेक्ट्रा ऑफ ईच लेयर इंडिविजुअली कि हम हर पेंट की सेपरेट लेयर को इसके अंदर सेपरेट इंडिविजुअली हम इसका ना एफटीआर करते हैं यानी कि लेयर्स लेके इनको एक ही टाइम में नहीं एक पेंट की लेयर ली उसकी सेपरेट एफटीआर की उसकी सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड लेयर की सेकंड थर्ड की थर्ड फोर्थ की फोर्थ जितने भी हमने सैंपल कलेक्ट किए हैं। लास्ट पे हम कंपेयर करते हैं स्पेक्ट्रा को विद रेफरेंसेस लाइब्रेरीज जो हमारे पास एफटीआर से रिजल्ट आता है फिर हम कंपेयर करते हैं इसको लाइब्रेरीज जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उसके हम बाइंडर रेजिन्स एंड एडिटिव से उसको कंपेयर करते हैं। पीवीजीसी एमएस गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी कट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द पेंट लेयर। हम पेंट लेयर का स्मॉल पोर्शन को कट करते हैं नियरली 5 to 10 100
माइक्रोग्राम तक पायरोलाइज सैंपल एट कंट्रोल टेम्परेचर, जो हम किस टेम्परेचर पे नियरली 1600 डिग्री सेल्सियस पे इसका सैंपल को कंट्रोल करते हैं टू रिलीज मोनोमेरिक फ्रेगमेंट्स को देखने के लिए हम 1600 टेम्परेचर देते हैं इसको। सेपरेट फ्रैगमेंट्स यूजिंग जीसी एंड डिटेक्ट विद एमएस। इन सेपरेट जीसी का बेसिकली जीसी का जो काम होता है ना वो सेपरेट फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करता है। जीसी का बेसिकली यही वर्क करता है। जो हमें डिटेक्शन हम आगे देखते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं ना वो हम एमएस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से करते हैं। फिर कंपेयर फ्रैगमेंटेशन पैटर्न्स विद रेफरेंस स्पेक्ट्रा टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक बाइंडर्स एंड एडिटिव। लास्ट पे यही कि हम जीसी से हम उसको सेपरेट कर लेते हैं, एमएस से हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं। लास्ट इनको कंपेयर करते हैं विद रेफरेंस स्पेक्ट्रा से जो हमारे पास लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं। हम उनसे जाके कंपेयर करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि इसके स्पेसिफिक बाइंडर्स कौन से, एडिटिव्स वगैरह कौन से यूज हैं, कौन सा केमिकल यूज हुआ है और कितनी परसेंटेज में था। ऑब्जर्वेशंस। लेयर में सबसे पहले बेसिकली हमने पहले भी डिस्कस किया, अब इसका कंपैरिजन इकट्ठा करते हैं कि लेयर्स, ये वाली लेयर में इसको ऑप्टिकल अपीयरेंस कैसी होगी, सेम फीचर्स कैसा हो जाएगा, एफटीआईआर पीक्स कैसी होगी, पीवी गैस मेटामास्क स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका फ्रैगमेंट्स क्या है, और लास्ट पे कमेंट्स इसमें क्या है। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लेयर प्राइमर, अगर हम प्राइमर लेयर यूज करें तो जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है वो होगी ग्रे यूनिफॉर्म, और इसका सेम फीचर्स हैं वो होगा डेंस फाइन पार्टिकल्स। एफटीआई पीक्स जो होंगी इसकी कार्बोनाइल होंगी नियरली टू 1730 पर सेंटीमीटर, और जो जीसीएमएस फ्रैगमेंट्स है ना ये स्टीराइन एक्रीलेट होगा, और टिपिकली ये होगा इंडस्ट्रियल प्राइमर, हम इसको इंडस्ट्रियल में यूज करेंगे। दूसरा बेस कोट की जो ऑप्टिकल अपीयरेंस है वो हमारे पास होगी ब्लू ग्लोवी, सेम फीचर्स जो होगा वो स्मूथ होगा, स्लाइटली पोरस होगा। एफटीआईआर पीक्स जो है इसकी ईस्टर की होंगी नियरली 35 पर सेंटीमीटर, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच होंगे, और उसके बाद इसकी जीसीएमएस फ्रैगमेंट्स होंगी एक्रिलिक पॉलीमर्स, और लास्ट पे कमेंट्स मैचेस व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशंस। क्लियर कोट में ऑप्टिकल जो इसकी अपीयरेंस है वो होगी ट्रांसपेरेंट, सेम फीचर्स स्मूथ होगा और ये थिन होगी। एफटीआईआर जो पीक्स हैं इसकी यूडी थिन होगी और 1720 पर सेंटीमीटर होगी, और इसकी जीसीएमएस फ्रैगमेंट्स है पॉलीयूरीथीन फ्रैगमेंट्स हैं, और लास्ट पे कमेंट्स प्रोटेक्टिव टॉप कोट होगा। यही बात कि जब हम अपने सैंपल को इसमें करके इसके सारा प्रोसीजर सबको फॉलो करके हमारे पे लास्ट पे जो रिजल्ट आएगा हम उसको लाइब्रेरी के रेफरेंस से, जैसे ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुके हैं कि मतलब हमारे पास ये पीक होगी तो इसमें हम एफटीआर कार्बोनाइल होगी, ईस्टर होगी, या सैम की ये सैम, अगर ये रेंज होगी एफटीआर की तो हमारे पास सैम ये होगा। तो बेसिकली फिर हम ये हमें पता चल जाएगा, ये कंक्लूजन हमारे पास आ जाएगा कि इसमें हमने लेयर जो है वो प्राइमर यूज किया, बेस कोट, क्लियर कोट, ऑप्टिकल अपीयरेंस ये है, बाकी हमने लेयर ये यूज करके हमारे पास रिजल्ट आया, फिर हमने लाइब्रेरी में जाके इसको कंपेयर करना है, फिर हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी लेयर्स में कौन सा केमिकल यूज किया और उसके पास ये आई है तो ये ठीक है आया कि गलत है रिजल्ट, इसलिए हम इसको लाइब्रेरी में कंपेयर करते हैं। लास्ट पे रिजल्ट एंड एनालिसिस। लेयर स्ट्रेटिग्राफी, द पेंट सैंपल exhibits a three-layer structure: primer, base coat, clear coat consist with modern automotive paints. Binder identification, FTIR and PVGCMS confirm acrylic based base coat and polyurethane clear coat with additives including UV stabilizers and fillers. Prevents inference. Elemental fingerprinting via SAM EDS and binder composition suggests the paint is consistent with specific vehicles manufacturers. Minor variations in pigment ratios can further narrow down to source to particle production, batch or region. Failure analysis insights. Cross-section inspections show minor delamination between primer based, likely due to improper curing or surface contamination, which can be relevant for industrial quality assessments. Conclusion. These forensic paint analyses demonstrate the power of integrated microscopic and chromatographic techniques in identifying layer composition, blinder type, and potential origin. Such analysis aids in crime scene investigations, hit and run vandalism, industrial quality control, failure analysis of coatings,
Result: microscopic analysis of the paint sample revealed a three-layer structure: gray primer, blue base coat, and transparent clear coat. SMEDS confirmed the elemental composition of each layer via metals like titanium and zinc in the primer, copper and iron in base coat, and primarily carbon and oxygen in the clear coat. FDR microscopy identified the binder types as alkyd in the primer, acrylic in the base coat, and polyurethane in the clear coat. Pyrolysis GCMS analysis provided molecular confirmation of these binders through characteristics decomposition fragments. बेसिकली रिजल्ट में उन्होंने हमें यही बात बताई है कि हम माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जब पेंट सैंपल का करते हैं तो सबसे पहले हम इसकी 3 लेयर्स हैं, एक है प्राइमर, एक बेस कोट और तीसरी क्लियर कोट। बेस कोट जब हम सेम करते हैं ना तो सेम में हम जो प्राइमर में हम यूज करते हैं वो है हमारे पास टाइटेनियम एंड जिंक प्राइमर है। बेस कोट में जो हम सेम करते हैं उसमें देखते हैं हम कॉपर और आयरन का यूज करते हैं और क्लियर कोट में जो सेम के दौरान हम केमिकल्स यूज करते हैं वो कार्बन एंड ऑक्सीजन इन क्लियर कोट में। फिर सेम को हम जब सेम की FTIR करते हैं उसमें बेसिकली हम जो प्राइमर है ना उसमें अल्काइड का यूज करते हैं, एक्रिलिक को बेस कोट में यूज करते हैं, पॉलीयूरेथेन को हम क्लियर कोट में यूज करते हैं। और पायरोलाइसिस GCMS एनालिसिस प्रोवाइडेड मॉलिक्यूलर कंफर्मेशन ऑफ दीज बाइंडर्स थ्रू कैरेक्टरिस्टिक्स डिकम्पोजिशन फ्रैगमेंट्स। बेसिकली उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया कि सेम जब करते हैं तो प्राइमर, बेस कोट और क्लियर कोट में हम कौन सा केमिकल यूज करेंगे, FTR जब करेंगे तो प्राइमर, बेस कोट और क्लियर कोट में क्या यूज करेंगे, और लास्ट पे पायरोलाइसिस में हमने जिसे में हमने उनको सेपरेट करना है और MS में हमने डिटेक्ट करना है। और हम यही बात को डिटेक्ट करते हैं कि इसकी मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन बाइंडर्स की क्या है, थ्रू कैसे हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स डिकम्पोजिशन और फ्रेगमेंट से हम इसकी मॉलिक्यूलर कन्फर्मेशन देखते हैं। ओवरऑल जो इसका रिजल्ट है, कंबाइंड ऑप्टिकल, एलिमेंटल एंड केमिकल एनालिसिस अलाउड डिटर्मिनेशन ऑफ लेयर स्ट्रेटिग्राफी, बाइंडर कंपोजिशन एंड पोटेंशियल सोर्स एट्रीब्यूशन, demonstrating the forensic value of paint evidence. This is references. This is all from my side. Thank you. Allah Hafiz.